بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک کے رہنما نے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کر دیا گیا۔ طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے کہا ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں ہے۔ ملک میں عبوری حکومت بنائی ہے تو اس کا خاکہ ہم دیں گے۔ طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام، آصف محمود اور ابوبکر معصوم دار نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عبوری حکومت کا خاکہ جاری کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی زیر سربراہی عبوری حکومت قائم کی جائے۔ ناہید اسلام نے کہا کہ طلبہ پہلے ہی ڈاکٹر یونس سے بات کر چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء کو جیل سے رہا کرنے کا حکم۔ صدر محمد شہاب الدین نے اپوزیشن جماعت BNP کی سربراہ خالدہ ضیاء کی رہائی کا حکم جاری کر دیا۔ بنگلہ دیش میں جاری کشیدگی کے درمیان ایک تازہ اور مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔ خبر رسائی ایجنسی کے مطابق بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، جس میں پارلیمنٹ کی تحلیل کے بعد عبوری حکومت کی تشکیل کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ملاقات کے بعد خالدہ ضیاء کی رہائی کا بھی حکم جاری کیا گیا۔ واضح ہے کہ خالدہ ضیاء سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن جماعت BNP کی سربراہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بنگلہ دیش کی صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ گزشتہ کئی روز کے دوران وہاں متعدد جانیں ضائع ہوئیں، جن پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ ان اموات کا احتساب یقینی بنانے کے لیے مکمل اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقتدار کی منتقلی بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق ہونی چاہیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ بنگلہ دیش میں تمام افریقین صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، جس کے لیے 24 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں وزراء کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں ترامیم شامل ہیں۔ ایجنڈے میں ضلع سوات، لوئر اپر چترال اور لوئر اپر دیر میں گندم کی خریداری، اسپتالوں میں میڈیکل آفیسرز کی بھرتی اور دیگر بھرتیوں میں نرمی بھی شامل ہے۔ نان ADP اسکیم سمیت 395 ویکسینیٹرز کی تنخواہوں کے لیے فنڈز کی منظوری، سرکاری ملازمین کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی رولز میں ترامیم، پیڈو کی چیف ایگزیکٹو پوسٹ کے لیے ایڈیشنل چارج کی منظوری بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ کابینہ اجلاس میں گریڈ 17 اور SST 16 کی اپ گریڈیشن بھی شامل ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ قراردادوں سے کشمیر ہمیں نہیں ملے گا، ہمیں ہر سطح پر کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دھرنے کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کا پاکستان سے رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا۔ حکومت کشمیر کے حوالے سے دو ٹوک موقف اپنائے۔ لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں، یاسین ملک، آسی اندرابی جیل میں قید ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے مزید کہا کہ حکمران طبقے نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ سن لو، جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا تمہارا بھی وہی مقدر ہوگا۔ شہباز شریف زرداری تمہارا کیا بنے گا؟ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ مغرب کے ایجنٹ نام نہاد حسینہ واجد کو آئرن لیڈی کہتے تھے۔ حسینہ واجد طاقت کے بلبوتے پر حکمرانی کر رہی تھی۔ حکومت اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان تحریری معاہدے کے باوجود بلوچستان کے مختلف شہروں میں دھرنے بدستور جاری ہیں۔ گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کا دھرنا میرین ڈرائیو پر جاری ہے۔ دھرنے کے باعث اہم چاہراہوں سے رکاوٹیں بھی نہیں ہٹائی گئیں، جبکہ راستے بند ہونے کے باعث کوئٹہ شہر میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی اور علاقے میں PTCL، موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سروسز متاثر ہو گئیں۔ ڈیپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ حکومت نے معاہدے پر عمل کرتے ہوئے گرفتار کارکنان کو بھی رہا کر دیا ہے، FIR بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون فوج اور تحریک انصاف میں درار ڈال رہی ہے۔ ہم نے مسلم لیگ نون کی سازش کو ناکام بنانا ہے۔
सवाबी में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। जलसे से खिताब में हमाद अजहर का कहना था कि कठपुतली हुक्मरानों ने मईशत को मनफी कर दिया। हमें दबाने के लिए जमहूरी रिवायात को रौंदा गया। हमने आईन और कानून के रास्ते को नहीं छोड़ा। हमाद अजहर ने सितंबर में लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपने खिताब में कहा कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि दुनिया खत्म हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द बानी पीटीआई हमारे दरमियान होंगे। लॉ एंड जस्टिस कमीशन 22 जुलाई का नोटिफिकेशन मंजर आम पर आ गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बतौर चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए कमेटी और टास्क फोर्स असर नौ तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के तहत जस्टिस मंसूर अली शाह टास्क फोर्स के रुकन नहीं रहे। जस्टिस याहिया खान अफरीदी कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद भी कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी की मुआवनत के लिए तनाज़ात के मुतबादिल हल के लिए नई टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। कमेटी की मुआवनत करेगी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। मुशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि सवाबी का जलसा जाली हुकूमत के खात्मे और बानी पीटीआई की रिहाई के नवीद है। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में सवाबी जलसे ने मुखालिफिन के औसान खता किए हैं। जलसे ने साबित किया कि बानी पीटीआई अवाम के दिलों की धड़कन है। लाखों की तादाद में अवाम ने शिरकत करके जाली हुकूमत को आखिरी वार्निंग दी। उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत सोच ले, ये मजमा इस्लामाबाद का रुख कर ले तो क्या होगा। सवाबी से इस्लामाबाद सिर्फ 1.5 घंटे की फासले पर है। जाली हुकूमत के नुमाइंदों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सूबाई मशीर इत्तलात का कहना था कि सवाबी तूफान की लहरें इस्लामाबाद के ऐवानों से टकराएंगी, जिससे जाली सल्तनत पाश पाश होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित के इलाके रहीम आबाद के बरसाती नाले में सैलाब से ज़राई ज़मीनें ज़ेर आब आ गई। अस्तौर में परशेंग के मकाम पर गुज़श्ता रोज़ आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी सूरत हाल से कई मकानात, फसलों और बागात को नुकसान पहुँचा। बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हो गई। मुतासरा गाँव में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गिलगित में जगलोट गोरो नाले में शदीद तोगयानी के बाद आज पानी की सूरत हाल मामूल पर आ गई है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि रवा माह के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में सालाना मीटिंग के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत होगी। वज़ीर खजाना ने बताया कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ साथ आबादी कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। शहर गाय से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का बड़ा फैसला कर लिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, कमिश्नर कराची हसन नकवी, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ू, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा और दीगर ने शिरकत की। इजलास में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर शहर से बाहर करने की हिदायत की गई। शर्जील मेमन ने कहा कि मुसाफिरों के लिए पुराने बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस चलाई जा रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI की 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त पर फ्रीकेन से कल जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने अकमल खान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि जलसा करना हर सियासी जमात का आईनी और जमहूरी हक है। इंतजामिया ने जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अदालत इंतजामिया का फैसला कलादम करार थे। दौरान समाअत जस्टिस अली बाकर नजफी ने ज़िला इंतजामिया के वकला से इस्तफसार किया कि आप किसी को सियासी एक्टिविटी से कैसे रोक सकते हैं? आपने जलसों के हवाले से कोई पॉलिसी बनाई है? अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधा कह दें जलसा नहीं करने देंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल याओ शरीन की सरबराही में चीनी बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदा वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चीनी वफ्द ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी, जिन पर वज़ीर दाखिला ने काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। 3 घंटे तवील मुशावरती मीटिंग में वफाक और पंजाब हुकूमत के कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला हुकाम की भी शिरकत। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं। PTI के साबिक रहनुमा असद उमर को तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर असद उमर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए थे, जहां उनकी तबीयत नासाज हुई। जराये का कहना है कि असद उमर को सीने में तकलीफ हुई, जिस पर उन्हें फौरी अस्पताल ले जाया गया। असद उमर के वकील ने बताया कि साबिक वजीर अदालत में ही थे कि उनके दिल में तकलीफ हुई। असद उमर को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया है, जबकि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी भी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि असद उमर की हालत अब खतरे से बाहर है। बगैर नाश्ते ब्लड प्रेशर की दवा लेने से उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम कर दी गई है, जिस पर उनकी हालत बेहतर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।